Dear students, a very pleasant good morning to you all again. We wish a good health and well-being of you all in these odd times of pandemic COVID-19. In this critical situation, we all family of St. Jude's are consistently ready to hold your hands. We are using a unique online system of education to teach and complete development of our lovely students. So, my dear students, please cooperate us and ensure that you must join the live classes and use all materials which we have prepared for you with our hard work. Okay. In previous day, you appeared in weekly test, big examination math. Hope that all you got a best score in mathematics. Now you have to study next chapter polynomial. Before starting chapter polynomial, I wanna some things which you have learned in previous classes, just like in 8th class, in 7 classes. On there you also we learn about polynomial in the chapter algebra of mathematics. 8th क्लास में आप लोग अलजेब्रा के अंतर्गत पॉलिनोमियल के बारे में सुना होगा. टुडे we will learn which read in previous classes. आपने जो 8th क्लास में 7th क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे. Just like basic concept of polynomials. First of all, etymology of polynomial. It means what is the meaning of word polynomial? Polynomial word is made from poly and nomial. Poly and nomial. Poly, nomial. You know, poly means many and nomial means term. It means polynomial means many terms. An algebraic expression with mathematical operation sign plus minus divided by into is known as polynomial. First of all, you have learned क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल. हम लोग पोलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे. तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब किसी पोलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स हैं उसके आधार पर. जस्ट लाइक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स. पोलिनोमियल in one variables. In one variable. It means example, just like example x to power 7 plus 3 plus x square minus 9. In this polynomial, using only one variable x,
or y square plus y upon 7 minus y upon 4 plus 7 in second polynomial using only one variable y. In this way, we can say that in a polynomial using one variable is known as polynomial one variable. जिस पॉलिनोमियल में केवल वन वेरिएबल का यूज हुआ होगा वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के नाम से जाना जाएगा. सिमिलरली जिस पॉलिनोमियल में टू वेरिएबल का यूज किया जाए तो पॉलिनोमियल इज टू वेरिएबल के नाम से जाना जाएगा. पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, ए स्क्वायर plus 2ab plus b square. In these polynomials, two variables a and b are using. Hence, a square plus 2a plus b square is a polynomial in two variables. Similar way, polynomial in three variables, polynomial in three variables. Three variables. Example, x plus y plus xy plus z or a plus b plus c. These two polynomials are in three variables. इस ढंग से पहले हम लोग नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पर पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया, जिसमें फोर वेरिएबल का यूज होगा, a plus b plus c d. That polynomial is polynomial in four variables. जितने वेरिएबल का यूज होगा पॉलिनोमियल में वो पॉलिनोमियल उतने वेरिएबल का कहलाएगा. तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल पॉलिनोमियल. इसके बाद हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल को, जो कि आपने 8th क्लास में पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ number of terms, on the basis of number of terms, number of terms. It means किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स का यूज हुआ. टर्म्स मीन्स प्लस माइनस साइन के साथ जो पॉलिनोमियल सेपरेट करेंगे वह टर्म्स कहलाएगा. जस्ट लाइक ओनली वन एक्स or 2x, it is monomial. Or y to the power y 100, this is also monomial. It means one term, polynomial of one term is known as monomial. Monomial. Similar way, polynomial of two terms, binomial. Binomial. Just like binomial, a plus b, x plus 2, x squared minus y squared. ये सब आपको जो है बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स. प्लस ए और बी दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है. नेक्स्ट में एक्स प्लस एक्स और 2 दो टर्म्स है उसके बीच में प्लस का साइन. इस ढंग से हम लोग जो है नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल. इसी के ढंग से आप ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल means three terms just like a square plus 2ab plus b square. This is trinomials. Or 2x square plus 7x minus 9. It is also trinomial. In both polynomials, there are only three terms. Then hence these polynomials are known as trinomial.
ट्राइनोमियल, यदि इफ ए पोलिनोमियल हैविंग 4 or more than 4 terms, that is only known as polynomials. केवल, वैसे इसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, आप अपने क्वाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, लेकिन मैथमेटिक्स की बुक में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, या आप अपने से क्वाइन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में 4 or more than 4 terms with a polynomial is known as polynomial. बस polynomial के नाम से उसको जाना जाता है। वैसे नंबर के लिए 5 के लिए पेंटा आता है, 6 के लिए हेक्सा आता है, 7 के लिए हेक्टा आता है। नोमियल के पहले उसको लगा सकते हैं, हेक्टानोमियल, मोनोमियल, ये बस जस्ट लाइक इट, इसका कोई यूज नहीं है। ये नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of degree। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री होता क्या। नाउ कम नो अबाउट व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या, ये देखिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल को अरेंज करने के बाद, उसके एक्सपोनेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसका सबसे मैक्सिमम जो आपको एक्सपोनेंट होगा, इंडेक्स होगा, वही उसका डिग्री कहलाएगा। जस्ट लाइक देखिए, यदि आप x प्लस वाई, इसका डिग्री क्या होगा, x प्लस वाई, तो x तो पावर 1 है, y तो पावर भी 1 है, तो इसका डिग्री 1। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हुआ, 1, डिग्री 1। यदि आपको कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो इसका डिग्री कितना होगा, मैक्सिमम 2 है, डिग्री 2। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री 2। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन, कहाँ पे डिग्री आपको फाइंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल के लिए आपको लेते हैं एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड माइनस वाई। अब बताइए व्हाट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जहां पर आपको देखिए कंबाइंड फॉर्म में एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई जेड इंटू कंबाइंड कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर 3 वेरिएबल का एक्स वाई जेड, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में है। यहाँ पर जितने डिग्री हैं, एक्स पर डिग्री, एक्स पर पावर 1 है, वाई पावर 1 है, जेड पावर 1 है, तो इस एक्स वाई जेड का जो डिग्री होगा, सारे एक्सपोनेंट के इंडेक्स को ऐड कर लेंगे, सम ऑफ इंडेक्स 1 1 1 प्लस 1 प्लस 2, आपको एक्स वाई जेड का इंडेक्स और एक्सपोनेंट 3 हुआ। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड माइनस वाई का डिग्री कितना होगा, ये डिग्री 3 हुआ, डिग्री 3 का ये पॉलिनोमियल। इस ढंग से कोई भी पॉलिनोमियल दिया जा सकता है, तो उसका आप जो है डिग्री को फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा, जहाँ पर कंबाइंड फॉर्म रहेगा, वहाँ पर जो है हम उसके एक्सपोनेंट को जोड़ लेंगे, इंडेक्स एक्सपोनेंट के जो इंडेक्स दिए हुए हैं उनको ऐड कर लेंगे, उसका वो डिग्री होगा। और जो मैक्सिमम आता है एक्सपोनेंट जिस टर्म का, उस टर्म का जो है वही उसका डिग्री कहलाता है।
मतलब इन ए पोलिनोमियल्स maximum index having is known as maximum index of a term contain that polynomial is known as the degree of that polynomial. मतलब किसी पोलिनोमियल में किसी एक टर्म पर, जिस टर्म पर सबसे अधिक एक्सपोनेंट का इंडेक्स पावर रहे, उस पोलिनोमियल का वही डिग्री हो जाता है। तो हम लोग जाने यहाँ पर कि क्या होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो अब हम लोग डिग्री जान लिए, तो अब डिग्री के आधार पर बांटने के लिए हम थोड़ा सा क्लासीफाई करेंगे, सुविधा होगी। आइए हम लोग बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, फर्स्ट डिग्री वन पोलिनोमियल, सबसे फर्स्ट हम एक क्वेश्चन एराइज करते हैं, उसके बाद इसको बताएंगे। जैसे जीरो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो? What is the degree of zero? Zero is also a term. So degree of zero is not defined. Degree of zero is not defined. Hence, only zero is called zero polynomial. Zero is called zero polynomial. Okay. Zero polynomial. Now, anybody if ask you to that what is the degree of zero polynomial, what do you say? You say that degree of zero polynomial is not defined. It means not degree of zero polynomial is zero. आप ये मत कहिएगा कि जीरो पोलिनोमियल का डिग्री जीरो होता है। जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड। ओके, तो इस ढंग से हम लोग पहले चलते हैं, फिर से अब हम लोग जो है क्लासीफाई करते हैं। देखिए, तो सबसे फर्स्ट आपको आया जीरो पोलिनोमियल, जिसका डिग्री फर्स्ट डिग्री नॉट डिफाइंड, ये जीरो पोलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। सेकेंड, अब सेकेंड में आता है जीरो डिग्री पोलिनोमियल। हाँ, ये आपको जीरो डिग्री, जिस पोलिनोमियल का डिग्री जीरो हो, वह जीरो डिग्री पोलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। ए पोलिनोमियल having degree 0 is known as zero degree polynomial. It is also known as constant polynomial. इसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। इसको आप कांस्टेंट पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, अब हम फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 3, डिग्री वन पोलिनोमियल। डिग्री वन पोलिनोमियल is also known as linear polynomial. After this, then a important question arises that why degree one polynomial is known as linear polynomial? डिग्री वन पोलिनोमियल का हम लोग लीनियर पोलिनोमियल नाम से क्यों जानते हैं?
तो डिग्री वन पॉलिनोमियल चाहे वह वन वेरिएबल का हो, टू वेरिएबल का हो या थ्री वेरिएबल का हो, वह मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, हम उसका यदि कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ खींचते हैं वह एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आता है। चाहे वह मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, वन वेरिएबल का हो, टू वेरिएबल का हो, थ्री वेरिएबल का हो, उसका हमेशा जो है कार्टेशियन प्लेन में एक ग्राफ का कर्व ऑफ ग्राफ जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के रूप में हमको गेट होता है। तो आफ्टर गेटिंग graph of degree 1 polynomial is a straight line, it is known as linear polynomial. Example, just like linear polynomial का example आप linear polynomial कह सकते हैं। degree 1 polynomial x plus y और x minus 2 y minus 3 these are examples of linear polynomial. After this, degree 2 polynomial, degree 2 polynomial, degree 2 polynomial, degree 2 polynomial, degree 2 polynomial is also known as quadratic polynomial, quadratic polynomial. Example, x square minus y square और x square plus 2x plus 3 और a square plus 2ab plus b square, just like these are. ये आपको a square plus 2ab plus b स्क्वायर, ये सब आपको डिग्री 2 पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत आते हैं। डिग्री 2 पॉलिनोमियल के बाद हम लोग जानेंगे डिग्री 3 पॉलिनोमियल के नाम से। डिग्री 3 पॉलिनोमियल, डिग्री 3 पॉलिनोमियल, डिग्री 3 पॉलिनोमियल, डिग्री 3 पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल इट मीन्स जैसे आप एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर, दीज आर डिग्री 3 पॉलिनोमियल, इट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। In similar way, you also degree 4 polynomial, degree 4 polynomial, degree 4 polynomial is also known as biquadratic polynomial, biquadratic polynomial, okay, biquadratic polynomial, it means this polynomial का डिग्री 4 होगा, biquadratic polynomial के नाम से जाना जाता है। इस ढंग से आप इसके आगे डिग्री 5 पॉलिनोमियल, डिग्री 6 पॉलिनोमियल, डिग्री 7 पॉलिनोमियल, इसमें इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये था आपको 8 क्लास तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना था। अब ये क्वेश्चन उठता है कि 9th में आने के बाद आपको पॉलिनोमियल में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले सिलेबस जान लीजिए। 9th क्लास में आने के बाद आपको पढ़ना है फर्स्ट चीज 9th क्लास में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, आपको 9th क्लास पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये आपका क्लास का चैप्टर शुरू होगा। अब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल को हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग 9th के सिलेबस के आधार पे पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के अंतर्गत फिर से इसको क्लासीफाई करेंगे, देखेंगे इसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या इसका जो डिग्री के आधार पर क्लासीफाई करेंगे, इसको टर्म्स के आधार पे, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे इसको हम क्लासीफाई करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, नेक्स्ट पीरियड में इसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये आपको था प्रीवियस क्लास के आधार पर बेसिक कॉन्सेप्ट।
बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के बाद आप लोग जानेंगे. Now thanks. Hope that this video also help you in the improvement of your knowledge of polynomial. Okay, thanks.